Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is lecture number 3 of the subject differential equation. Before going into the detail, let me give you a review of the lecture which we have studied before. In the last lecture, we studied solution of differential equation. Solution of differential equation, basically any expression y is equals to e power x kind of a thing is a solution of our differential equation dx plus y is equals to 0 if and only if it satisfies this equation. Then we will say that y is equals to e power x is the solution of the differential equation. In the last lecture, we have also studied the interval of solution, trivial solution, general solution, particular solution, singular solution. A solution which is not related with general solution is called a singular solution. The solution which contains the perimeter is called general solution. Whenever you define a specific value to the perimeter, you will get a particular solution, and the solution y is equals to 0 will be a trivial solution. After that, we studied families of solution. Families of a solution means the general solution normally contains the shape e power x with some specific parameter. By changing the different values of this parameter c, you will get different values of y. All these values of y will be named as families of a solution. If y is a solution of a differential equation, then whatever the value of c you substitute, that will make a solution of that differential equation. इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं वो चीज़ स्टडी की थी. इनिशियल कंडीशंस जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हमारा टारगेट होता है जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ मूव करना. मूव करने का मतलब ये होगा कि आपका जो जनरल सोल्यूशन है उसके अंदर जो पैरामीटर आ रहा है सी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना कि सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 2, 4, 10 कुछ जो भी आती है वो ट्रेस करना. उस चीज़ को ट्रेस करने के लिए हम इनिशियल वैल्यू कंसिडर करते हैं. Finally, we have studied the existence and uniqueness of a solution for any differential equation. ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी. Today, what we are going to do is we are going to start different type of differential equation. Differential equations दो तरह की होती हैं. एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर डेरिवेटिव मैक्सिमम 1 हो. सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी डेरिवेटिव की बात नहीं की जाती. ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इनके अब आगे जाके हम लोग टाइप्स पढ़ने लगे हैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर. ये सेपरेबल भी होती हैं, होमोजेनियस भी होती हैं, लीनियर इन नेचर भी होती है. हर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है. आज उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनमें से एक वो टाइप सॉल्व करने लगे हैं जो कंसिडर टू बी मोर easier than all others. G. Starting with the concept of separable equations. Separable, from the word separable, it is very clear. It will be a differential equation of the first order. First order means एक derivative होगा and a function f of xy. That function f of xy should be a separable kind of function. Separable means in which you can differentiate easily the function of x and the function of y, where y is a dependent variable and x is an independent variable.
you can easily separate the variables of x and y. इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें सेपरेबल इक्वेशंस कहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल जो टेक्निक रिक्वायर्ड है दैट इज इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेट करना है दोनों को सेपरेट करने के बाद। To solve separable equation, we solve the equation g of y equals to 0 to find the constant solution of the equation. For non-constant solution, we write the equation in the form separable में आप क्या करते हैं कि just dy g of x g of y को y के साथ ले आते हैं, y का फंक्शन dy के साथ ले आते हैं और जो x का फंक्शन है उसे x के साथ ले जाते हैं। After doing this shifting, ये वो शिफ्टिंग है जो मैंने यहाँ पर सिंपल इसे आप सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि y वाले सब वेरिएबल्स एक साइड पे हो जाते हैं और x वाले सब एक साइड पे हो जाते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जो y वाली फंक्शन होगा टर्म्स होंगी उन्हें y के रिस्पेक्ट से और जो x वाली टर्म्स होंगी उन्हें x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। इसको जो भी इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, इसको जो भी इंटीग्रेट करके आंसर आएगा वो आप लिख देंगे विद अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग आ रहा है, दो इंटीग्रल्स हैं, मगर हम उस डिटेल में नहीं जाते। हम जनरली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रख देते हैं जिससे आप जिस मर्जी के साथ लिख दें, चाहे तो आप जी ऑफ वाई के साथ लिखें, चाहे तो आप एच ऑफ एक्स के साथ लिखें। इसमें दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन with a parameter c. Whenever there is a parameter in the solution, this is called a general solution. Whenever you are having some initial value problem means if you are having y of x naught is equals to y naught, then what you have to do is to convert this equation solution, general solution, to a particular solution by finding the value of c. जब कोई भी इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी तो हमारा टारगेट होगा कि जो c इसको फाइंड आउट करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Here is the first example related to the separable differential equation with the initial condition. The equation is dy by dx is equals to y square minus 1 by x. Initial condition is y of 1 is equals to 2. Initial condition को थोड़ा सा explain कर दूं। Initial condition is y of 1 is equals to 2. That means you are having the value of x naught equals to 1 and the value of y naught is equals to 2. The differential equation dy by dx is y square minus 1 by x. By the theme of separable differential equation, यहाँ पर एक चीज तो ये होनी चाहिए कि आपके वेरिएबल्स स्प्लिट हो जाने चाहिए। Here what we have done, y वाले सब वेरिएबल्स y के साथ ले आए हैं और x वाले वेरिएबल्स x के साथ ले गए हैं। ये स्टेप करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था then what we have to do is to just integrate the left hand side and right hand side with their respective variables. Respective variable means जहाँ पर y होगा वहाँ y से इंटीग्रेट, जहाँ पर x होगा वहाँ x से इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए जो भी ट्रिक्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दोनों साइड्स को अलग इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि ये किस तरीके से इंटीग्रेशन हुई है, मगर आने वाले आगे मेथड्स के अंदर ये आपका अपना डिपार्टमेंट होगा इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि आप कैलकुलस मल्टीवेरिएबल सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये काम आपने खुद करना है। मैं यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 1 by
y square minus 1 d of x. This can be written as 1 by y minus 1 and y plus 1 d of y. Here I'm going to use the concept of partial fraction. Partial fraction ये कहती है कि 1 by y minus 1 y plus 1 can be written as a by y minus 1 plus b by y plus 1. Target is to find a and b ताकि हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकें. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप्स मिस करके लिखता हूं. दिस विल बी y plus 1, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 प्लस b of y minus 1. ये स्टेप आई होप सो कि आपको आता होगा. इन केस अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक इंटीग्रेशन चाहे तो आप सेकेंड ईयर का मैथ ओपन करते हैं वहां से देख लें, कैलकुलस ओपन करते हैं, या आपके पास सिंपल गूगल पे लिख दें तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की थीम कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये स्टेप क्या है. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी अगेन स्किपिंग अ स्टेप. कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर a होगा, यहाँ से b आएगा, इज इक्वल्स टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट यहाँ से a आएगा, यहाँ माइनस b आएगा, इक्वल्स टू 1. सॉल्विंग दीज टू फंक्शंस, दोनों को सिंपल ऐड कर दें, b कैंसिल हो जाएगा, 2a विल बी इक्वल्स टू 1. वैल्यू ऑफ a इज 1 by 2. a plus b is equals to 0, b will be minus 1 by 2. फाइंड करेंगे तो अब ये जो फैक्टर है 1 by y minus 1 into y plus 1 can be converted into a की जगह पे 1 by 2 y minus 1, b की जगह पे minus 1 by 2 y plus 1. अगर मैं 1 by 2 1 by 2 दोनों लिख देता हूं तो 1 by 2 कॉमन आ जाता है. जहां पर a लिखा है वहां 1 रह जाएगा, जहां b लिखा है वहां माइनस 1 रह जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी. अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन की तरफ. इंटीग्रेशन ये कहती है कि जब आपने इंटीग्रेट करना है 1 बाय y माइनस 1 माइनस 1 बाय y प्लस 1 को, ये वाला भी फंक्शन नेचुरल लॉग बन जाएगा. नेचुरल लॉग की थीम क्या होती है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग अ फंक्शन इन अ डिनोमिनेटर, इफ यू हैव द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इन अ न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो, it will be converted into a natural log. It will be natural log of y minus 1 minus natural log of y plus 1. Natural log, log की property, the property of the log is whenever you are having a negative sign between the logs, तो जिसके साथ माइनस होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और नेचुरल लॉग या लॉग कॉमन हो जाता है. फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 by x, 1 by x को इंटीग्रेट जब आप करते हैं तो 1 by x dx, 1 by x can be written as you are having a function in a denominator, derivative of that function exists in the numerator, so it will be simply a natural log of x. जहां तक पैरामीटर c की बात थी वो आप दोनों में से किसी एक साइड पे अप्लाई कर दें. अगर आप लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, राइट पे अप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगी. ये हमारे पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है. The solutions to the given differential equation are 1 by 2 natural log y minus 1 y plus 1 equals to natural log of x mod plus c. क्योंकि mod का सिंबल इसलिए यूज कर रहे हैं कि नेचुरल लॉग नेगेटिव साइंस के ऊपर ऑपरेट नहीं होता. कंडीशन है कि x मस्ट बी पॉजिटिव. मस्ट बी पॉजिटिव के लिए हम लोग यहाँ mod की सिंबल यूज करते हैं. नेचुरल लॉग के अंदर जब कभी भी माइनस का सिंबल आ जाए -2, तो ये
एरर देता है, नेचुरल लॉग ऑपरेट नहीं होता। सो नेचुरल लॉग हमेशा उस सूरत ऑपरेट होगा whenever there is a mod sign और absolute value sign। ठीक है, सो यहाँ पर absolute value sign हमारे पास आता है। सो this will this will be the solution of the differential equation without the initial condition। initial condition अभी तक हमने यूज नहीं की। स्टेप नंबर 3, representing the solution of a differential equation। ये वो solution है जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये वो solution है जो constant solution represent कर रहा है। constant solution कैसे फाइंड आउट करते हैं? constant solution के लिए आपको लास्ट पेज पे ये बताया गया था, whenever you are having a differential equation of the type dy by dx is equals to h of x g of y, put g of y is equals to 0, इसे सॉल्व करें, जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी द कांस्टेंट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में g ऑफ y क्या है? y स्क्वायर माइनस 1 जो y का फंक्शन है। इसको सॉल्व किया, y की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस 1। सो दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ अ कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, एक कांस्टेंट सॉल्यूशन है जो डायरेक्ट y को सॉल्व करके आया है, एक वो सॉल्यूशन है जो प्रॉपर इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। Now moving toward the use of initial condition। initial condition का यूज मैंने आपको बताया था, उसका एक ही टारगेट होता है कि जो हमारे पास पैरामीटर शामिल होता है सॉल्यूशन में उसे ट्रेस आउट करना। y is equals to प्लस माइनस 1, इनिशियल कंडीशन थी कि x नॉट is equals to 1, when x is equals to 1 y is equals to 2। यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 रखें तो y2 नहीं आता, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन, तो हम इस सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। सॉल्यूशन वही होगा जो इनिशियल कंडीशन प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करता हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चंस में आप लोग खुद ये काम करेंगे। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, जहाँ पर y लिखा है वहां पर 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, जहाँ पर x लिखा है वहां पर 1 प्लस c। ये इनिशियल कंडीशन सिंपल मैंने अप्लाई कर दी है। यहाँ से जो भी c की वैल्यू आती है वो आपका आंसर होगा, वो c की जगह पे पुट करना है। नेचुरल लॉग ऑफ 1/3। जब आपको इस चीज का कंफर्मेशन हो जाए कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं है, तो मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। c को सिंपल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, नेचुरल लॉग कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लें, रीअरेंज करें इक्वेशन को, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। दिस इज द फाइनल solution of the differential equation, first order differential equation by the method of separable of equation, separable of variables। Using the same technique, let us move toward the second example। The second differential equation is dy by dx is equals to 1 plus 1 by y square। Before solving it by the method of separable differential, first we have to check it is a separable equation or not। उसके लिए इसके x और y के फंक्शंस अलग हो जाने चाहिए, वो चेक करते हैं। This is a simple of a function of y, there is no function of x, so इसका मतलब है, so the second variable is t, x नहीं t, there is no function for t, so we can simply apply 1। तो कोई मसला नहीं, g of y को अलग कर लेंगे, d of t को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर लेंगे, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ सेपरेबल इक्वेशन। ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो सेपरेबल नहीं होगी। सेपरेबल कैसे बनाएंगे या क्या करेंगे वो हम उस वक्त देखेंगे।
सेपरेबल का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड द कांस्टेंट सोल्यूशन। कांस्टेंट सोल्यूशन ये कहता है कि आपके पास जो जी ऑफ वाई है, जी ऑफ वाई को इक्वल टू 0 पुट करें, सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगर सोल्यूशन आ गया दैट विल बी अ कांस्टेंट सोल्यूशन, अगर नहीं आया देन यू हैव व्हाट यू हैव टू राइट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कांस्टेंट सोल्यूशन। आप इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर मस्ट नॉट बी 0 बिकॉज वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया है, वाई को 0 नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर is equals to minus 1. If you want to find the y, it will be iota not accepted. That must be a real number. So there does not exist any constant solution. Let us move toward the method of separating the variables. For non-constant solution, what we have to do is to shift the variable and the constant functions of y on one side and the function of t on the other side. तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा होल्ड आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप भूल चुके हैं तो उसे आप प्रैक्टिस कर लें। आफ्टर रीअरेंजिंग दिस पार्ट it can be written as 1 minus 1 by y square plus 1. This is basically the integral of tan inverse. 1 को जब आप y से इंटीग्रेट करेंगे you will get y. So y minus tan inverse of y on this side. इस साइड को इंटीग्रेट करेंगे you will get t, constant of integration that is capital C. ये आपके पास solution आ जाता है that for that differential equation. It is not easy to find the solution in an explicit form y as a function of t. Here we cannot easily split y and t in this final solution form. Explicit form जिसे आप सादा words में simple words में कहते हैं कि in the subject of y it is not easy to write in the subject of y. Since there exists no constant solution, all solutions are given by the implicit equation found in step 2. This is a simple method of solving a differential equation. Let us move toward one more example with the same kind of property. Next question is initial value problem. dy by dt is equals to 1 plus t square plus y square plus t square y square. Function है. Initial condition is y is equals to 0, y of 0 is equals to 1. This is the value of x is equals to 0 for initial condition and y is equals to 1. Before going into the solution toward integration, पहले हम constant solution find out करते हैं। constant solution क्या कह रहा था कि जो y का फंक्शन है पहले वो ट्रेस करें फिर उसे इक्वल टू 0 रखें। y का फंक्शन ट्रेस करने के लिए आप y को कॉमन लेते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो दो फैक्टर बनते हैं, एक फंक्शन ऑफ t बनेगा, एक y बनेगा। जो y का पार्ट होगा आपने उसे इक्वल टू 0 करना है। वहां से अगर y की वैल्यू आती है दैट विल द कांस्टेंट सॉल्यूशन, अगर y की वैल्यू नहीं आती इट इज नॉट हैविंग एनी कांस्टेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर अगेन आयोटा वाली प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, सो इट इज नॉट हैविंग एनी कांस्टेंट सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रल के मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि दोनों वेरिएबल्स को दोनों डिफरेंसेस के साथ लिखना है और इक्वेशंस की डिफरेंट साइड्स पे। t वाले पार्ट को t के डिफरेंशियल के साथ लिख दिया, y वाले पार्ट को y के डिफरेंशियल के साथ लिख दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू इंटीग्रेट। लास्ट एग्जांपल में मैंने ये कहा था कि दिस इज बेसिकली सिंपली अ tan इनवर्स ऑफ y। यहाँ पर आप y1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, t स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे, you will have a constant of integration as well. That will be tan inverse of y equals t plus t cube by 3 plus c. After arranging
हमारे पास y equals to a function of 10. Since there exists no constant solution, all solutions are given by the implicit or explicit equation. अब रहेगी बात इनिशियल कंडीशन की। इनिशियल कंडीशन में जहां पर t लिखा है वहां 0 पुट कर दें, जहां पर y लिखा है वहां 1 पुट कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। जहां पर t लिखा है वहां 0 पुट किया, जहां y लिखा है वहां 1 पुट किया, तो आपके पास जो c की वैल्यू आती है दैट इज पाई बाय 4। पाई बाय 4 फाइंड करने के बाद आप इस सोल्यूशन में पुट करेंगे जो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन आया था, जनरल सोल्यूशन जिसे कहते हैं। जनरल सोल्यूशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वो फाइनल फॉर्म होगी जिसे आप सोल्यूशन कहते हैं। दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम which can be represented in the form of explicit way y is equals to tan of this function. In the subject of y हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व की गई हैं, उनकी तरफ अगर हम बढ़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा बताता जाऊंगा। यू आर हैविंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन with coefficient 1 plus x dy minus y dx is equals to 0. पहली बात कांस्टेंट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसे आप अरेंज कर लें, जो फॉर्म है जिस तरीके से फेमिलियर हैं आप। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें। इफ यू वांट टू अरेंज इट यू कैन अरेंज इट एज dy by dx is equals to y by 1 plus x। अब मैंने इसे उस फॉर्म में लिख दिया है जो पिछले क्वेश्चंस की फॉर्म थी। मेरे पास जो फंक्शन ऑफ y है इट इज सिंपली y। फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू 0 कर दें तो मेरे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन जो बनता है दैट इज y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू is to move toward the part of integration, splitting the variables according to their differentials। y वाले एक्सप्रेशन को y के साथ लिख दें, x वाले एक्सप्रेशन को x के साथ लिख दें। We will get this form after integrating both sides with respect to the respective variables। लेफ्ट साइड पे भी नेचुरल लॉग बनेगा, राइट साइड पे भी नेचुरल लॉग बनेगा। You will get a constant of integration that is c1। अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन हो you have to find this c1। अगर इनिशियल कंडीशंस ना गिवन हो तो this will be the solution। कांस्टेंट लिखने के आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए होंगे काफी सारे कैलकुलस में भी। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग ऑफ, अगर आपके पास हर एक्सप्रेशन में नेचुरल लॉग आ जाए यू कैन आल्सो राइट इट लाइक नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट को आप नेचुरल लॉग ऑफ c1 भी कर देते हैं, फिर नेचुरल लॉग कॉमन लेके आप एलिमिनेट कर देते हैं। आप उस फॉर्म में लिखना चाहें उस तरह लिख लें, अगर आप उस तरह नहीं लिखना चाहते तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दें। सो कांस्टेंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे कांस्टेंट को c1 लिखें तो बेशक लिखें, आप इसे नेचुरल लॉग ऑफ c1 लिखें तो कोई मसला नहीं। अल्टीमेटली बात पर्टिकुलर सोल्यूशन जब भी अगर आप किसी इनिशियल कंडीशन के लिए फाइंड आउट करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही ऐसी रीशेपिंग करता है कि आंसर सेम आता है। Here just some of the algebraic expressions कि किस तरीके से आप इसे अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने के बाद हम लोग जस्ट सिंपली इसे यूं लिख देंगे, ये अरेंज फॉर्म आती है हमारे पास। वही जो सेकंड बात मैंने कही कि अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ सी कांस्टेंट को लिख देते हैं तो आपके पास फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम। फाइनली दिस इज योर सॉल्यूशन, constant solution and the solution you obtained by proper integrating the differential equation। One more example, आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स थोड़ी सी टफ होती जाएंगी।
जब हम कहेंगे कि एग्जाम्पल्स टफ होती जाएंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस में बहुत अजीब सी सिचुएशन आएगी। सिर्फ इसका एक ही मतलब है कि आपकी इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इफ़ यू आर गुड इन इंटीग्रेशन तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर क्वेश्चन टफ नहीं है। इफ़ यू आर बैड इन इंटीग्रेशन तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लें। आगे हर क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन करनी है, और आगे जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वो विदाउट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। यू मस्ट बी गुड इन इंटीग्रेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है dx dy यूज हो रहा है। इफ यू वांट टू अरेंज इट यू कैन अरेंज इट। दिस इज द फंक्शन ऑफ y, पुट इट इक्वल टू 0। अगर वैल्यूज आती हैं यू विल से that will be the constant solution। अगर वैल्यूज नहीं आती there will be no constant solution। Here we have y equals to 0 as a constant solution। Next what we have to do is to split the variables according to the differentials। जो dy वाले हैं उन्हें एक साइड पे लिख दें, जो dx वाले हैं उन्हें दूसरी साइड पे लिख दें। You will get the required result। अगले साइड्स पे लिखने के बाद इंटीग्रेट किया। Integrating, the constant of integration is c1। c1 को अरेंज किया और फाइनली उसी पैटर्न पे चलते हुए हमने अपना सोल्यूशन लिख दिया। Same is the case, example number 6। Example number 6 is just a question with the initial conditions। ये आप लोग खुद देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसे फर्दर क्लास में देख लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा मसला हो अदर देन द इंटीग्रेशन। आप अगर आप स्टक होंगे तो इंटीग्रेशन में होंगे, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप स्टक हों। सो इंटीग्रेशन को रिवाइज कीजिएगा। इंटीग्रेशन को रिवाइज करने का बहुत ही आसान तरीका है। सेकेंड ईयर का अगर आपके पास मैथमेटिक्स मौजूद है तो उठाएं, उसकी हर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कर लें, इनिशियल 2 क्वेश्चंस कर लें या सेंट्रल 2 क्वेश्चंस कर लें। हर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कर लें, आपकी इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगी। उतनी रिवाइज हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। जी क्वेश्चन नंबर 6 उसी पैटर्न पे चले हैं, उसी तरीके से चले हैं सॉल्व करते हुए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो मुश्किल हो। At the end, after solving example 7, move toward the exercise। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा और हर क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर आप ग्रुप के फॉर्म में मूव करना चाहते हैं तो 2-3 बच्चे जो नियर बाय रहते हैं या जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी है, 2 क्वेश्चन अलग अलग बच्चा डिस्ट्रीब्यूट कर ले। एटलीस्ट हर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, चाहे वो इनिशियल कंडीशन से रिलेटेड है या विदाउट इनिशियल कंडीशन से रिलेटेड है। हर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और चेक करना है कि इज दिस पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्वेबल नहीं है, जो प्रॉब्लम कर रहा है, जिसमें कोई इश्यू है, कोई टेक्निकल बात आ गई है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड दिस वाज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छे तरीके से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। ऑनलाइन सेशन से पहले अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आइएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन सेशन में से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।